plate capacitor. It consists of two plain parallel conducting plates separated by certain distance. C equal to epsilon 0 A by D. The capacitance of a parallel plate capacitor is directly proportional to permittivity of free space, area of the conducting plate, and inversely proportional to the separation between them. Inversely proportional to the separation between them. This is the capacitance of parallel plate capacitor. Capacitance of parallel plate capacitor. You know, tell it. Now turn goes for the effect of dielectric on capacitance of parallel plate capacitor. Asked in this year, current question. 3 marks for proving आई capacitance of capacitor को डिस्कस करने के लिए आप ये नोट करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रूविंग कराता हूँ. Now turn hold for the effect of dielectric on the capacitance of parallel plate capacitor. Effect of dielectric on the capacitance. Means we are going to discuss about the parallel plate capacitor with dielectric slab parallel plate capacitor with dielectric slab. That means, as we have discussed, we have the two plates R and S with surface charge density plus sigma and minus sigma. We have these two surface charge densities equal and opposite वाले plates हैं. Separation between them is small d, plus q charge is given to the R and minus q charge is given to the plate S. Obviously, an electric field is developed between them, E is equal to sigma upon epsilon naught when
when vacuum is in between plates, जब प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था तो वहां ई नॉट क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस क्या है, स्मॉल टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी पोलराइजेशन में पढ़े थे आप कि ड्यू टू पोलराइजेशन इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर ऑन द टू फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, नॉन पोलर नॉन कंडक्टिंग स्लैब, याद आया, नॉन पोलर नॉन कंडक्टिंग स्लैब। तो एज द नॉन पोलर नॉन कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड between the plates, that is in between the electric field, in the electric field, so due to polarization equal and opposite charges, equal and opposite induced charges appear on the two faces of dielectric. So an electric field is developed inside the slab EP, we can say EP, which is equal to sigma p upon epsilon zero. All things have been discussed very well. Sigma p upon epsilon zero in between the dielectric slab. So we can say inside slab E net is what? E0 minus EP. E net is what? E0 minus EP. We can say now E equal E0 minus EP exists in the region of thickness, in the region of thickness T, and E0 exists in a region, exists in the region, जितना बचा है स्लैब के अलावा उन सब में कितना होगा, इन द रीजन D माइनस T। क्लियर? इन द रीजन, वी कैन सी इन द रीजन ऑफ थिकनेस, इन द रीजन ऑफ थिकनेस D माइनस T। अच्छे से पहले ये समझ लें, है पुराना टॉपिक लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें सोचना होगा। मैंने कहा ये प्लेट थे, ऑलरेडी चार्ज प्लेट थे, इसके बीच में आपने एक नॉन कंडक्टर ला के रखा तो ऑब्वियसली वो पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन के चलते द टू इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड चार्ज अपीयर होंगे। एंड दे सेट अप देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। So inside the dielectric net electric field is reduced value. What is reduced value of electric field is E naught minus EP. So we can say the existing E naught acts in the region between the plates which is free from dielectric. जो जगह बचे हुए उसमें लग रहा होगा पूरा D है thickness, D dielectric में ले लिया, जितना जगह बचा हुआ है उनमें वो ओरिजिनल वाला लग रहा होगा, ओरिजिनल वाला एग्जिस्ट कर रहा होगा। और ये डायलेक्ट्रिक के अंदर तो कौन एग्जिस्ट कर रहा है, रिड्यूस्ड फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय V इक्वल, क्योंकि क्या होता है E इंटू थिकनेस, जितने एग्जिस्ट करे तो कौन कौन से हैं, पहला तो E नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, E एग्जिस्ट कर रहा है कितने थिकनेस में, D माइनस T में, और एक E एग्जिस्ट कर रहा है कितने थिकनेस में, वो एग्जिस्ट कर रहा है E0 एग्जिस्ट कर रहा है D माइनस T में, और E एग्जिस्ट कर रहा है थिकनेस T में। ध्यान समझिए, कैपिटल E एग्जिस्ट कर रहा है थिकनेस T में और E नॉट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है D माइनस T में। ओके, चूंकि के क्या था, अप्लाइड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करिए पीछे वाले टॉपिक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द अप्लाइड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन से
E can be written as E naught upon K. From this, so V equals E0 D minus T plus E0 by K into T. When E0 is taken as common, we can say the potential difference between plates is D minus T plus T by K. Now, capacitance of capacitor, capacitance C equal Q upon V. Okay. Look over the board. Capacitance C equal Q upon V. What is the value of V? अच्छा, V को तो आप एक स्टेप तो और ले सकते थे ना, यहाँ पर V को तो और आप कह सकते थे E नॉट को आप कह सकते थे सिग्मा जीरो व्हाट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो D minus T plus T by K. Now by putting here C equal Q upon sigma upon epsilon 0 D minus T plus T upon K. C equals Q upon sigma को क्या बोलेंगे Q upon A epsilon 0 पर गया D minus T plus T upon K. Q cancel out. Hence we can say C equals epsilon 0 A upon D minus T plus T by K. This is the capacitance of parallel plate capacitor with a dielectric slab. Capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab. सिंपली देख लें. This is the capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab. बिल्कुल ये नोट कर लें, स्पष्ट है. जहां भी आपको कंफ्यूजन हो आप डाउट्स पूछ सकते हो. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. इजीली नोट कर लें. The lecture of electrostatic potential and capacitance is going to end. Only a very few topics are remain to explain. Very few proving derivations are remain. We are in position to attain the questions asked in the previous year board examination from the chapter electrostatic potential and capacitance, and also from the electric charges and fields. So we can say the first section, electric charges section, is completed. 10 marks is background. 10 नंबर हमारे हो गए.
बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस। और इन द मंथ ऑफ मई अगर आपका पूरा एक सेक्शन तैयार होता है यूनिट फर्स्ट, तो एक अच्छा इंडिकेशन है कि सिलेबस ऑन टाइम आपका एंड होगा। प्रूविंग्स हो रही हैं, आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। मुद्दे पर आए, कंपेयर करना हो कि जो जब जब प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था तब कैपेसिटेंस ज्यादा होगा या डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पे कैपेसिटेंस ज्यादा हुआ। अब उस बात को हम अपने यहाँ जस्टिफाई कराएंगे। जब हम डाइलेक्ट्रिक को लेक्चर कर रहे थे तो हमने समझाया था आपको कि डाइलेक्ट्रिक इज यूज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। वहां आपको याद होगा हम लोग चर्चाएं किए थे कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने पे बढ़ जाता है, मतलब चार्ज स्टोर करने की उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे, वही हमने दिखाना है। क्योंकि अभी आपने क्या देखा, C इक्वल टू क्या आया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब से, एप्सिलॉन 0A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे। अच्छा, अगर हम डेनोमिनेटर से D कॉमन ले लें तो क्या आएगा, D मैंने कॉमन लिया, मतलब इसमें से कॉमन लिया मैंने, अच्छा समझे। फर्स्ट में मैंने D कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 माइनस T बाई D प्लस T बाई K। अब मैंने पूरे में ही नीचे डेनोमिनेटर के पूरे में ही D कॉमन ले लिया, तो जहां था वहां तो ठीक ही था, 1 माइनस T बाई D हो गया। जहां नहीं था वहां डेनोमिनेटर में आ जाएगा T बाई D K हो गया, 1 माइनस T बाई D और T बाई D K हो गया, जहां नहीं था वहां हो गया। Now then goes for this one। अब ये एप्सिलॉन 0A बाई D को आप अलग लिख सकते हो, एप्सिलॉन 0A बाई D भाई अलग हो ही गया, सेपरेट हो गया ये। और डेनोमिनेटर में बचा आपके, डेनोमिनेटर में बचा 1 माइनस T बाई D प्लस T बाई D की। और इस डेनोमिनेटर में अगर हम इस 1 माइनस T बाई D ही यहां कॉमन ले लें प्लस T बाई D, तो यहां क्या बचेगा, वी कैन से 1 माइनस T बाई D अगर यहां कॉमन ले तो यहां बचा 1 माइनस 1 अपॉन K। समझ होंगे, 1 माइनस 1 अपॉन K। दैट मींस वी कैन से C इक्वल टू, ये एप्सिलॉन 0A बाई D क्या होगा, ये C0 हुआ ना। दैट मींस द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having vacuum in between the plates, having vacuum in between the plates, so we can say C0 1 upon 1 minus T by D, 1 minus T by D, K minus 1 upon K। क्लियरली आप ये देख सकते हो, क्लियरली केवल C नॉट नहीं है, C में 1 अपॉन समथिंग से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो जब डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा। सिंपली आप कहेंगे क्लियरली C इज ग्रेटर देन C नॉट। ये प्रूविंग हुई कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पे कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होता है। अब एक और कर सकते हो आप इसमें, अगर आप चाहें तो केस ले सकते हैं, केस बोल सकते हैं, केस जैसे केस लेना हो, केस फास्ट। If T equal D, that is dielectric fits completely, dielectric fits completely between the plates, पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले। प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितना था, स्मॉल डी, और स्मॉल डी और थिकनेस T कितनी, स्लैब पे T। तो जब T आपने इंट्रोड्यूस किया तो दोनों इक्वल आ जाए, दैट मींस कंप्लीटली फिट कर ले। इसमें आप रखेंगे तो क्या आएगा, C इक्वल टू C0, इसी फिट कर सकते हैं, इसी देखो, इसी कहीं देखिए, C इक्वल्स एप्सिलॉन 0A अपॉन D माइनस D प्लस D बाई K। जहां जहां स्मॉल t था इसमें, वहां हमने क्या पुट कर दिया, D। तो फर्स्ट वाला टर्म तो 0 हुआ, और ये D बाई के ऊपर जाएगा तो आप क्या बोलोगे, C इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन 0A बाई D, और वो तो C0 था, C इक्वल टू K C नॉट। तो ये प्रूव हुआ कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया था, दैट मींस व्हेनेवर देयर वाज
vacuum between the plates of capacitor, the capacitance was C0. But when we introduce a dielectric non-conducting slab of dielectric constant small k, then the capacitance of the conductor become k times of the original one. जब आपने प्लेट्स इंट्रोड्यूस नहीं किया, सॉरी स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, तो उसका कैपेसिटेंस था C0. आपने स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, स्लैब का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उस पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा? K टाइम्स ऑफ इनिशियल. K times of the C0. The capacitance of a capacitor increases by a factor K. By a factor K. ये डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने का इफेक्ट रहा. आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे. नाउ टर्न गोज फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. याद होगा क्लास 10th में आप पढ़ते थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. वैसे ही यहाँ क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. दो वेज में, जैसे वहां सीरीज और पैरेलल में. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. First one, series combination. First one, series combination. मैंने मान लिया इनिशियली 3 कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस C1 के, C2 के और C3 कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड थे. सीरीज में तो आप जानते ही हैं, एंड टू एंड. उनको एक हमने बैटरी एक्सटर्नल वोल्टेज V से कनेक्ट किया. इनिशियली द कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड. सुन ध्यान से. इनिशियली द कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड. फर्स्टली plus Q charge is given to the left plate of capacitor C1. So right plate of C1 acquires negative charge. फिर सुनने कैसे? Let the capacitors are initially uncharged. Firstly, the plus Q charge is given to the left plate of capacitor C1. The electric field of this positive charge pulls the electric field of this positive charge pulls the electric field, we can say negative charge up to the right field of C1. ध्यान समझिए फिर से. First, initially the capacitors are uncharged. The plus Q charge initially given to the capacitor. The electric field of this positive charge pulls the negative charge to the right plate of the C1 till the electric field lines
begins from the left plate, end on the right plate. And this negative charge on the right plate of C1 comes from the left plate of C2, which is in connection with the wire. That means we can say C2 पर पॉजिटिव चार्ज रहा. समझने का प्रयास करें. मैंने कहा एक को चार्ज देंगे आप, कैपेसिटर को चार्ज करने का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट. पहले कैपेसिटर सारे अनचार्ज थे, हमने इनिशियली प्लेट कैपेसिटर C1 के लेफ्ट प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दूंगा और सारे चार्ज हो जाएंगे. देखिए कैसे लेफ्ट प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया आपने. इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो चार्ज होंगे वो पुल्ड होंगे टू द राइट प्लेट. तब तक जब तक कि ऐसा ना हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट प्लेट से बिगिन होकर राइट प्लेट पे एंड हो रहा है. दैट मींस वी कैन से राइट प्लेट ऑफ C1 एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. कनेक्शन को देखें तो ये जो राइट प्लेट पर C1 पे नेगेटिव चार्ज आया होगा वो C2 के लेफ्ट प्लेट से आया होगा, मतलब वहां चार्जेस की कमी होगी तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया. फिर वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज का पुल करेगा चार्जेस को तब तक कि जब तक कि ऐसा ना हो जाए कि शुरू हो रहा है लेफ्ट प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड और एंड हो रहा है राइट प्लेट पे. सिंपल ऐसे ही ट्रांसफर हो गया तो सारे के सारे प्लेट्स क्या हो गए? चार्ज. और एक मूल बात इसका ये रहा कि ईच कैपेसिटर्स हैव सेम चार्ज. ईच कैपेसिटर्स हैव सेम चार्ज. जब उनको आप सीरीज में लगाएंगे तो सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज क्या होगा? सेम होगा. ईच कैपेसिटर हैव सेम चार्ज. थीम क्या है इस पूरे टॉपिक की? When capacitors are connected in series, when capacitors are connected in series, the potential difference is equal to the sum of potential difference between each capacitor plates individually. That means we can say कि V इक्वल क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3. V इज व्हाट? Q1 बाई C1 और Q1 क्या सब पे Q है. V2 इज व्हाट? Q बाई C2 Q बाई C3. आपने Q को कॉमन लिया तो क्या आया? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. रुका बड़ा सिंपल ही देख लेंगे. और V क्या है? V इज व्हाट? Q. V तो है, V को आप बोलते हैं Q बाई C. मतलब we are looking for a single capacitor. Listen, we are looking for a single capacitor which can store the same charge as it is stored by number of capacitors in combination. हमारा दिमाग कहाँ है? हमें एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए, एक अकेला, जो उसी सप्लाई वोल्टेज पर, उसी सोर्स पर उतना चार्ज स्टोर कर सके जितना कि ये सब मिलके कर रहे थे. तो हम इस अकेले कैपेसिटर को इन सब का क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट इक्विवेलेंट. लिसन, वी आर लुकिंग फॉर सच अ सिंगल कैपेसिटर which can store the same amount of charge as it is stored by number of capacitors in combination. जितना ये C1, C2, C3 मिलके चार्ज स्टोर कर रहे थे उतना अगर अकेले C को करना हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसी V पर. ये सब भी Q को इशू कर रहे थे कि सब पे चार्ज सेम है, Q है, ये सब Q ही तो कर रहे हैं. तो मान लो अकेले Q करता उसी वोल्टेज पे तो Q इक्वल टू V इक्वल क्या आता? Q बाई C. तो और ये Q क्या हुआ? कैंसिल होगा. सिंपली आपने कह दिया कि 1 अपॉन C इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. यही है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. So we can say the equivalent capacitance of a capacitor is equal to the sum of reciprocals of the individuals. Listen again. The value of
equivalent capacitance of a capacitor is equal to the reciprocal of equivalent capacitance is equal to sum of reciprocal of individuals. इक्विवेलेंट कैपेसिटर के कैपेसिटी का रेसिप्रोकल सभी के अलग अलग कैपेसिटी के रेसिप्रोकल के बराबर होगा. नाउ थैंक्स फॉर टुडे. क्रॉस क्वेश्चन कमेंट्स आर इनवाइटेड. ओके, थैंक्स. नमस्ते टू ऑल ऑफ यू.